had cooperated very well, and this voice wants you to cooperate in a similar and more better way. You know that this voice is not going to your eyes start closing, becoming heavier and heavier, more and more, still more, and now your eyes are closing very fast, going to sleep. Until this voice says, because this voice has to work upon your mind, and you will have to be kept in this state for one chair, only 3 inches from the chair. Yes, stop. You have to stay in this position only. You're just like that. You will not experience any trouble sitting that way. And your body is becoming hard as a rock at that place. Yes, it's very hard. It will not move anymore. Okay, now it becomes normal and you stand upright. Yes. Please move backwards towards the right. Yes. More right. Yes. Take your seat. And remember that with every sound of this voice, your sleep becomes deeper and deeper. On the one hand, you have to cooperate and act in the manner that this voice, you will be able to act according to the instructions of this voice. Your brain will work only in the manner that this voice says. And you will also give replies to the questions that this voice asks. So first of all, let's see what is the level of your cooperation with this voice and how much faith your brain has upon this voice. You are a mathematics teacher. Are you? Yes. You are. Are you aware that by a recent research
it has been decided that number 6 will no more be considered as a number. So now in mathematics we don't have 6. Is it clear? Right? You know numbers 1, 2, 3, you will not have 6 in it. Do you agree to it? Say yes or no. Will you agree? Yes. Count from 1. Let me see whether 6 comes or not. Count 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 has come. That means you are not cooperating with the voice, right? The voice said that 6 is not there in numerals anymore. All of mathematics will now not have 6 anymore, right? Count once and 6 should not come anywhere. Start. 1, 2, Yeah. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Very good. Right? Your name is? Maria Das, right? You are suffering from the problem of facing people, isn't it? What is called stage fright. Is it so? You get nervous when you have to speak in front of people, a group of people, or when you have to address an audience. Is it right? Yeah. Could you tell me, when did this fright come into you? Since when are you suffering with this problem? आपको ये समस्या कब से है? शायद 1991। 1991। उस समय आपका उम्र कितना था? लगभग 15 वर्ष। 15 वर्ष। किस क्लास में आप थे तब? मैं 9th या 10th क्लास में था। हाँ। जरा तेजी से आप अपने उस उम्र में पहुंचिए। ये आवाज आपको मदद कर रहा है। बड़ी तेजी से ऐसा लगेगा जैसे आप एक रेलगाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और आपके अभी की उम्र से पीछे के तरफ, जब आप 9th या 10th में थे, जब का ये बात है, आप उस तरफ जा रहे हैं और आपकी जिंदगी के अभी से लेके पीछे तक जहां आपको ये प्रॉब्लम हुआ था, उस दिन तक की सारी घटनाएं सिनेमा के रील की तरह स्पीड में जाती हुई दिखेंगी और जाकर आप ठीक उस जगह पर रुकेंगे जहां पर आपको ये समस्या हुई थी। ये शुरू किए हम लोग, चले आप।
जा रहे हैं? जी। हाँ, हम पहुंचे 2004, 2002, 1999, 1998, 1996, 1994, 1992 और ये आया 1991। पहुंच गए। सारा दृश्य एकदम जैसे सिनेमा में दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से सामने दिख रहा है ना। क्या देख रहे हैं बताइए? हाँ, क्या हो रहा है क्लासरूम में? ढेर सारे स्टूडेंट हैं। हाँ, ढेर सारे स्टूडेंट हैं। ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं। सब आप ही के क्लास के? सब आपके क्लास के ना? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ प्रोग्राम चल रहा है। क्या चीज का प्रोग्राम? क्या चीज का प्रोग्राम चल रहा है? गाना, चुटकुला, ये सब ये क्लास में हो रहा है कि स्कूल के हॉल में हो रहा है? क्लासरूम में है। क्लासरूम में। टीचर भी हैं? जी। क्या नाम है टीचर का? परमानंद मिश्रा। परमानंद मिश्रा। बहुत अच्छे टीचर हैं ना? जी। आपको बहुत भाते थे ये। जी। ये टीचर आपसे भी बोले कि आप आकर कुछ कहिए, है ना? जी। आप वहां पर क्या करना कर सोचे? चुटकुला कहना या गाना गाना? निद्रा आपकी और भी गहरी होती जा रही है। ये परमानंद मिश्र जी जो आपके क्लास के टीचर्स हैं, आपको भी कुछ कहने को बुलाए? जी। क्या बोले आपसे करने को? चुटकुला सुनाने बोले थे। चुटकुला। और आप सुनाए? जी। हमें भी सुनाएंगे? जी। सुनाइए। एक बार एक चना बेचने वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था, एक बार खाएगा तो 1000 बार खाएगा। एक बदमाश लड़का बोलता है, मुफ्त खिलाएगा तो 1,00,000 बार खाएगा। वाह। ये चुटकुला में आपको हंसी नहीं आई? हंसी आई थी। आई थी, लेकिन आपने उस हंसी को दबा लिया। क्यों? क्योंकि चुटकुला कहने वाला को खुद नहीं हंसना चाहिए, वो दूसरों को हंसाने के लिए कहता है कि नहीं? जी। वो खुद हंस देगा तो फिर दूसरों को शायद मजा नहीं आएगा, है ना? जी। तो आपको ये कहने में कोई वहां पर कोई डर लगा था? किसी तरह का नर्वसनेस लगा था? नहीं लगा था, है ना? मुझे ये बताइए कि सबसे पहले नर्वसनेस आपको कहाँ लगा था और कब? जब मेरे को गाना गाने के लिए बोला गया था। गाना गाने के लिए बोला गया था। ये कब बोला गया था आपको?
उसी दिन के प्रोग्राम में। उसी दिन के प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा था? ये हम लोग का लोयला स्कूल में, मतलब शायद टीचर्स डे या कुछ था, तो सब अपने अपने क्लास में ही, मतलब अपने टीचर के साथ टीचर के लिए कर रहे थे, है ना? कि एक तरह से अपने टीचर को अपनी ओर से आप लोग सम्मान ज्ञापित कर रहे थे, है ना? जी सर। आपसे कौन सा गाना गाने को कहा गया था? ये सर के पसंद का गाना था। हाँ, नाम क्या था गाने का? पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार, पाँचवा मौसम प्यार का इंतजार था। ये गाना किस पिक्चर का है? पिक्चर का नाम तो शायद याद नहीं है। ऐसे बहुत बार बहुत सारे सिनेमा के गाना बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, लोग सिनेमा के नाम को नहीं याद रखते हैं, लेकिन गाना याद रहता है ना? और आपको ये गाना भी याद था, है कि नहीं? जी। तो आप किस तरह से गाए थे, एक बार गाकर सुनाइए तो। वैसे ही सर मैं एक आध लाइन गाया हूँ, फिर मैं डर गया, मेरा आवाज़ कांपने लगा था। आपका आवाज कांपने लगा था। एक बार वैसे ही गाइए, देखें तो कहाँ कांप रहा है आवाज। पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। पता नहीं मैं कितना गाया हो भी याद नहीं हो। ध्यान दीजिए, मैं इसके आपको बाद शायद मैं नहीं गा पाया था। इसके बाद आप नहीं गा पाए थे। क्यों नहीं गा पाए थे? क्या गाना याद नहीं था या कि आप नर्वस हो गए? मैं नर्वस हो गया था। नर्वस हो गए थे। क्या आपको नर्वस, क्या चीज ऐसा था जो नर्वस कर दिया? किसी लड़के ने मेरे ख्याल से नाइट क्लास में जब मैं गया तो वहाँ बाहर बाहर से भी लड़के आए थे। तो आपको ऐसा लगा कि वो बाहर के लड़के क्या सोचते होंगे? हाँ? क्या गाना गाना कोई खराब बात है? खराब तो नहीं। बल्कि ये गाना अगर आप गाते पूरी तरह से अच्छे से तो आपका नाम होता, लोग कहते कि आप अच्छा गा सकते हैं, क्योंकि अभी आपने जैसे गाकर सुनाया पूरा सुर और ताल में, जैसे ये गाना लता मंगेशकर के लिए जानते हैं, क्योंकि वो बहुत मशहूर गायिका है ना? रशिया के लोग भारत से अधिक राज कपूर को जानते हैं, ये आपको मालूम है? रशिया में राज कपूर अपने ज़माने में बहुत फेमस एक्टर थे और उनका हर सिनेमा रशिया में हाउसफुल जाता था। बस नहीं होना चाहिए था ना? ये आपने एक आपके दिमाग में उस समय, हालांकि उस समय आपका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं था, तभी भी आप बच्चा के ही रूप में जाने जाते थे। उस समय आपके दिमाग में एक गलत निर्णय लिया जिसके चलते आपको नर्वसनेस होने लगा। ये बात को आप कबूल करते हैं कि आपके दिमाग ने उस दिन उस समय एक गलत निर्णय लिया था
और उसके खामियाजे को आप आज भी भुगत रहे हैं ना। एक मिथक बात को आप अपने दिमाग में बैठा लिए हैं ऐसे जगह पर कि आप उसको खुद से नहीं निकाल सकते हैं, और वो आपके लिए एक परेशानी का कारण बन चुका है ना। आप ये मानते हैं कि वो धारणा मिथक था, उसे निकालेंगे। आज्ञा दीजिए इस आवाज को, ये आपके शरीर में ये आवाज प्रवेश करेगा और आपके अवचेतन मन के अंदर जाकर उस गलत निर्णय को हटाएगा, क्योंकि उसी गलत निर्णय के चलते आज भी आप स्टेज फ्राइट से भुगत रहे हैं। आज्ञा देते हैं ये आवाज आपके शरीर के अंदर दिमाग में प्रवेश किया, और आस्ते आस्ते आपके सारे दिमाग में एक हलचल सा लगेगा, और ये आवाज सीधा आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। आपको दिमाग में उथल पुथल महसूस हो रहा है? और ये आवाज देखिए पहुंच चुका है। वो जो गलत धारणा एक तरह से वहां पर अटक कर है, उसे ये आवाज पकड़ लिया है, और ये बहुत मजबूती के साथ वहां अटका है, लेकिन ये आवाज उसे निकाल रहा है। महसूस कर सक रहे हैं? खींच कर निकालने का प्रयास कर रहा है, एकदम टाइट स्क्रू की तरह लगा हुआ है, उसे खोल रहा है ये आवाज। महसूस हो रहा है कुछ खुलता हुआ? जैसे पुराने स्क्रू को खोलेगा तब वैसा आवाज आपको महसूस होगा।